Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Once again, happy to be together, फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम एकत्रित हुए हैं, that we can come to your house कि आज हम आपके घर में आ सके and glorify the name of the यानी Lord. परमेश्वर के नाम को हम गौरव दे सके। Today, as we gather together, आज जैसे हम एकत्रित हुए हैं, I believe that we all are happy and blessed. मुझे विश्वास है कि हम आशीर्वादित हैं और हम आनंदित हैं। God is doing something. परमेश्वर कुछ तो कर रहा And है। I say, let God do. मैं कहता हूँ कि परमेश्वर को करने दो, Let His work, उसके कार्यों को, His plan, उसके हेतु को, His purpose उसके उद्देश्य को may be fulfilled in our life. अपने जीवन में पूरा होने दो। This morning, आज सुबह I want you to focus your eyes, आज मैं चाहता हूँ कि आप अपना लक्ष्य केंद्रित करें, meditate upon God's word, आज परमेश्वर के वचन पे आप मनन करें and be blessed by God. और परमेश्वर से आशीर्वादित हो। I want you to open book of Genesis 12th chapter, मैं चाहता हूँ कि आप उत्पत्ति के 12वें अध्याय को हम पढ़े, 1 to 3. 1 से लेके 3 वचन We तक will read. हम पढ़ेंगे। Now the Lord had said unto Abraham, Now the Lord said to Abraham, अब प्रभु ने अब्राम से कहा, Get thee out of thy country, get thee out of thy country तू अपने देश से बाहर निकल, and from thy kindred, and from thy kindred अपने नाते रिश्तेदारों से and from thy father's house, and from thy father's और house तेरे पिता के घर से, unto a land that I will shew thee. and to the land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and I will bless thee, and make thy name great, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, I will bless them that bless thee, and curse him and curse them that curseth thee. then cursed thee. And in thee And in thee shall all the families of the earth be shall blessed. all the families on the earth shall be blessed. Let us pray. आज आओ हम प्रार्थना करें। Our Father, once again in Jesus' name, मेरे पिता प्रभु यीशु के नाम से we commit this morning's service at your feet. ये सुबह की जो सर्विस है हम आपके चरणों में सौंपते हैं And we ask you, और हम मांगते हैं, speak to us, हमारे साथ आप बोलो, lead us, हमें चलाओ, guide us, हमें मार्गदर्शन and करो, bless us. हमें आशीर्वादित And करो। let this morning's service आज की ये सुबह की जो सभा है be under the presence of the Holy Spirit. तेरे पवित्र आत्मा के उपस्थिति के अंदर हो। Enlighten our mind हमारे मन को तू प्रकाशित कर and teach us, Lord, और हमें सिखा प्रभु, your ways, your plan and purpose. तेरे मार्ग, तेरे हेतु और तेरे उद्देश्य। We give you all the glory, honor and praise. हम तुझे सारा महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 Once again we thank God for Brother Srinivas Srivakar हम पुनः बंधु श्रीनिवास शिरगांव के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, for helping us to translate. हमें सहायता करने के लिए, वो भाषांतर करने के लिए। Let's turn to God's word today. आज हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। I want to speak to you today, आज मुझे आपसे बात करना है, making of God. परमेश्वर बनाता है, Making of God. परमेश्वर बनाता है। God said to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा leave your land, कि आपका जमीन है आप छोड़ो, leave your family, आपका परिवार छोड़ो, your father's house, आपका पिता का घर, your kindred, आपके जो रिश्तेदार नाते, and go to the land that I show you. और उस जमीन पर जाओ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। And God says, और परमेश्वर प्रभु ने कहा I will make of thee a great nation. कि मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, I will bless you. मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा, I will lift up your name. मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, You shall be blessing to कि others. तू दूसरों के लिए आशीर्वाद ठहरेगा। He that blesses you will be blessed. जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, He that curses you will be cursed. जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। And in thee all the families on the earth shall be blessed. परंतु तुझ में ये सारी पृथ्वी की मानव जाति आशीर्वादित होगी। What a blessing. क्या आशीर्वाद है, What a call. कि क्या बुलावा है। Sevenfold calling of Abraham. 7 पटी का जो बुलावा है अब्राहम का, उसके बारे में When you read हम जब पढ़ते हैं book of Galatians 3rd chapter, गलती की किताब 3रा अध्याय, in that Bible says कि उसमें पवित्र शास्त्र कहता है that through Christ the promise of Abraham are your and my promise. कि यीशु मसीह के द्वारा जो वचन परमेश्वर ने तुम्हें और हमें दिए हैं वो हमारे हैं। Through Christ यीशु मसीह के द्वारा, the promise of Abraham are ours. यीशु मसीह के द्वारा जो अब्राहम को जो वचन दिए वो हमारे हैं। Let's see the sevenfold calling of Abraham. हम देखेंगे 7 पटी का जो अब्राहम का बुलावा है उसके बारे में। God says, परमेश्वर ने कहा first before I start working in you,
पहले मैं तुझ में कार्य करने से पहले leave your land, अब तू जगह छोड़, leave your father's house, तू तेरे पिता का घर छोड़, leave your kindred, अब सारे रिश्तेदार नाते गोटे तू छोड़, and start moving towards the land I show you. और तू उस जगह के पे तू चलना शुरू कर जो जगह मैं तुझे बता रहा हूं। And when you leave all these things और तुम जब ये सब छोड़ोगे and start moving the land towards the land which I show और you, जो भूमि के तरफ तू बढ़ेगा जिसने मैं तुझे दिखाया हूं, then I began to work in you. उसके बाद मैं तेरे में कार्य करना शुरू करूंगा। He said, उसने कहा I will make of thee a great कि nation. मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। Number 2, he said, दूसरा चीज उसने कहा, I will bless you. मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा। Number 3, he said, तीसरा उसने कहा, I will lift up your name. मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। Number 4, he says, चौथी चीज उसने कहा you shall be blessing to others. कि तू दूसरों के लिए आशीर्वादित ठहरेगा। Number 5, he says, पांचवी चीज उसने कहा, whosoever blesses you shall be blessed. जो तुझे आशीर्वाद देगा वो आशीर्वादित होगा, Whosoever curses you shall be cursed. जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा। And in thee, And उसमें all the families पूरे जो जातियां है on the earth जो पृथ्वी पे shall be blessed. तेरे से आशीर्वादित होगी। My God, मेरे परमेश्वर what a sevenfold calling. कि 7 पटी का जो आशीर्वाद है, And I am sure as a believer, as a disciple, मुझे विश्वास है कि एक मसीह और शिष्य के मुताबिक we all need this sevenfold कि calling. हमें ये 7 पटी का आशीर्वाद सबको चाहिए। Now let me tell you step by step. अभी मुझे थोड़ा थोड़ा आपको समझाने दो। God said, I will bless you. परमेश्वर कहता है कि मैं आपको आशीर्वादित We करूंगा। all need blessing. हम सबको आशीर्वाद की जरूरत I है। want blessing, you need blessing, all need blessing. मुझे आशीर्वाद की जरूरत है, आपको आशीर्वाद की जरूरत है, हम सबको आशीर्वाद की जरूरत है। Everybody wants blessing today. सबको आज आशीर्वाद चाहिए। We all want God to bless us. हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीर्वादित करे। Number 2, दूसरा, he said, I will lift up your name. मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। You know, everybody wants their name to be lifted up. हर कोई चाहता है कि उसका नाम बड़ा ऊंचा किया जाए। Number first, पहला जो है, God will bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेगा। Abraham said, अब्राहम ने कहा let nobody says कि कोई न कहे that Abraham is rich because of me. कि अब्राहम मेरी वजह से श्रीमंत है। Yes, nobody can say that Abraham is rich because of me. कि कोई न कहे कि अब्राहम मेरी वजह से धनी है या श्रीमंत है, Because God has blessed me. क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीर्वादित Let किया the है। blessings of God comes in you and my life through Jesus Christ. कि जो परमेश्वर के जो आशीर्वाद है तो आपके और मेरे जीवन में यीशु क्रिस्त के द्वारा आए। Number 2, दूसरा जो है, he said, I will lift up your name. उसने कहा कि मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। We all want our name to be lifted up. हम सब चाहते हैं कि हमारा नाम ऊंचा हो जाए। Today we can see, आज हम देख सकते to हैं lift up the name. कि आज हमारा नाम ऊंचा करने के लिए You can see people are doing so much. लोग क्या क्या करते हैं We are trying to put ourselves. कि हम खुद को वहां पे डालने की कोशिश करते We हैं। are trying to advertise. हम खुद के एडवर्टाइज करने की कोशिश करते We हैं। try to put in the Facebooks and we are trying to put in YouTube and we try to put so many places. हम फेसबुक पे जाते हैं, हम यूट्यूब पे जाते हैं, हम कहीं और बहुत सारी जगह हम हमारा नाम डालते हैं। We want our name to be lifted हम higher. चाहते हैं कि हमारा नाम ऊंचा उठाए And we are trying all the way. और हम पूरी तरह से हम वो कोशिश करते हैं। What can we do to lift up our name? हम क्या कर सकते हैं जिसके कारण हमारा नाम सब जगह हो जाए। I know my friends मैं जानता हूँ मेरे मित्रों that many of us कि हमसे बहुत सारे are trying to make our name higher. हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नाम ऊंचा हो जाए। But let me tell you one thing. पर मुझे आपसे एक चीज आपसे कहने दो, Let God lift up your name. परमेश्वर को आपका नाम ऊंचा करने दो। When God will lift up your name, जब परमेश्वर आपका नाम ऊंचा करेगा, nobody can stop it. कोई भी उसे रुका नहीं पाएगा। You know, as I always say, आप जानते हो, जैसे मैं हर समय कहता हूँ let Lord open the door for you. कि परमेश्वर को वो आपके लिए दरवाजा खोलने दो। When God opens the door, जब परमेश्वर कोई दरवाजा खोलता है you have to forget it. कि आपको वो भूल जाना चाहिए। But when somebody else opens the door for अगर you, कोई दूसरा आपके लिए वो दरवाजा खोलता है you have to keep it open. तो आपके लिए वो उसको आपके लिए खुला रखना। Again I will say, मैं पुनः कहता हूँ, if somebody else opens the door for you, अगर कोई आपके लिए वो द्वार खुला करता है you have to keep it open. कि आपको वो खुला रखना पड़ता है। But if God opens the door for you, अगर परमेश्वर आपके लिए वो द्वार खोलता you है, have to forget it because nobody can shut the door. हमें उसको भूल जाना है, क्योंकि कोई भी वो द्वार बंद नहीं कर सकता। When God lifts you up, nobody can stop you. अगर
कोई परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। Let God lift up your name. परमेश्वर को आपका नाम ऊंचा उठाने दो। My friend, मेरे मित्रों, I have seen मैंने देखा है many people, बहुत सारे लोगों को trying to lift up name, कि कोशिश कर रहे हैं अपना नाम ऊंचा उठाने की, trying to put identity, कि आपका उसका जो आइडेंटिटी है वो सामने लाने की, identity card, कि उनके जो आइडेंटिटी कार्ड है putting all sorts of things, कि सारी प्रकार की जो चीजें हैं वो डालने के, all sorts of degrees they try to put कि उनके सारे डिग्रीज वो दर्शाते हैं to lift up their कि name. जिसकी वजह से उनका नाम उठाया जाए। But let me tell you one thing. पर मुझे एक चीज आपसे बोलने दो God said to Abraham, कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, I will lift up your name. मैं तेरा नाम ऊंचा उठाऊंगा। God lifted up Abraham's name. परमेश्वर ने अब्राहम का नाम ऊंचा उठाया। One man एक मनुष्य who left everything and followed God. कि जिसने सब कुछ छोड़ा और परमेश्वर के पीछे चला, And that one man, और वही एक मनुष्य to the whole world knows Abraham. आज पूरी दुनिया अब्राहम को पहचानती है। God lifted up his name. परमेश्वर ने उसका नाम ऊंचा उठाया। He said, I will bless you. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीर्वादित And करूंगा, then I lift up your name. उसके बाद मैं तेरा नाम ऊंचा उठाऊंगा। Don't try to run out without blessings of God. आप भागने की कोशिश मत करो परमेश्वर के आशीर्वाद बिना। Don't try to lift up the name without blessings of God. परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना आपका नाम उठाने की आप कोशिश मत करो। When God starts blessing you, जब परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने शुरू करेगा, automatically your name is lifted higher. एकाएक आपका नाम ऊंचा उठाया जाएगा। Bible says, शास्त्र कहता है King Solomon, कि किंग सोलोमन जो था, God blessed him with wisdom and God blessed him with all the wealth. कि सोलोमन राजा था कि परमेश्वर ने उसको सारा ज्ञान देके और सारा श्रीमंती देके उसको आशीर्वादित किया, And after all the blessing, और सारे आशीर्वाद लेने के बाद his name was lifted so higher उसका नाम इतना ऊंचा उठाया गया that Queen Sheba came all the way कि to रानी see him. शिबा उसको देखने आई। My friend, मेरे मित्रों, let God bless you to such a way कि परमेश्वर आपको इस तरह से आशीर्वाद करे that your name will be lifted कि higher. आपका नाम उठाया जाएगा। When your name is lifted higher, आपका नाम जब ऊंचा उठाया जाएगा, people come to see you because that blessing that God has for you. लोग आपको देखने के आएंगे वो आशीर्वाद जो परमेश्वर ने आपको दिया है। It is dangerous to go without being blessed. ये बहुत घातक है कि हम जाए आशीर्वाद के बिना। God will lift up your name. परमेश्वर आपका नाम ऊंचा उठाएगा। God lifted up Abraham's name. परमेश्वर ने अब्राहम का नाम ऊंचा उठाया। And then he said, उसने कहा, you shall be blessing to others. कि तू दूसरों के लिए आशीर्वाद ठहरेगा। All of us wants to do the ministry. कि हम सबको वो सेवकाई करना है। All of us wants to be blessing to others. हम सबको दूसरों के लिए आशीर्वाद ठहरना है। My friend, when we wait upon the Lord, मेरे मित्रों, हम जब परमेश्वर पे रुकते हैं, Lord will use us and bless others through you and me. परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा To bless others. दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए। Unless you are blessed, you cannot bless others. जब तक आप आशीर्वादित नहीं होते, आप दूसरों को आशीर्वादित नहीं कर सकते। Unless you are blessed, you cannot bless others. जब तक आप आशीर्वादित नहीं होते, आप दूसरों को आशीर्वादित नहीं But कर when सकते। you are blessed, you can bless others. मगर आप जब आशीर्वादित होते हैं तभी आप दूसरों को आशीर्वादित कर सकते Let हो। me tell you, my friend. मुझे आपसे एक चीज कहने दो। Lord said to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा you shall be blessing to others. कि तू दूसरों के लिए आशीर्वाद ठहरेगा। Then God said to Abraham, उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, whoever blesses you, I will bless him. जो कोई तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीर्वादित What करूंगा। a blessing. क्या आशीर्वाद है। And then he said, whoever curses you, I will curse him. और उसने कहा जो कोई तुझे श्राप देगा मैं उसे श्रापित करूंगा। And then he said, और उसने कहा, in thee, और उसमें all the families on the earth कि राष्ट्रों के पृथ्वी के सारे जो जातियां है shall be blessed. वो आशीर्वाद पाएंगे या आशीर्वादित होंगे। He told Abraham, उसने अब्राहम से कहा, I will give you international ministry. मैं तुझे अंतरराष्ट्रीय सेवकाई दूंगा All world कि सारा जग will be blessed. उससे आशीर्वादित Can you होगा। imagine one man? आप सोच सकते हो एक मनुष्य, Nobody knows him. उसको कोई नहीं जानता था God is telling him, कि परमेश्वर उसको कहता है come out. आप तू बाहर आ, And he said, और वो कहता है your name, कि तेरा नाम whole world will know. पूरा जग है वो जानेगा, And whole world will be blessed because of you. और पूरा जग In thee तेरे all द्वारा the आशीर्वादित होगा। In thee all the world will be blessed. तेरे द्वारे पूरा जग आशीर्वाद पाएगा। International ministry वो अंतरराष्ट्रीय जो सेवा है, is God's blessing that we all want our ministry to grow. ये परमेश्वर का आशीर्वाद है, हम सब चाहते हैं वो करने के लिए। But let me tell you, मगर मुझे
आपसे ये कहने दो, when God will take you in the hand and when God will begin to grow your ministry, जब परमेश्वर आपको हाथ में लेगा और परमेश्वर आपकी सेवकाई बढ़ाएगा, nobody can stop it. कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। When you try to do it, जब आप उसका कोशिश करोगे there are chances of ups and downs. कि वहां पे ऊपर नीचे होने की संभावना है, But let me tell you, पर एक चीज मुझे आपसे कहना है when God is doing it, कि अगर परमेश्वर ये करता है, no man can shut it. कोई भी मनुष्य वो बंद नहीं कर पाता। We have to wait upon God. हमें परमेश्वर पे रुकना है। God said to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा you just leave all these things and rest all I will do. कि तू ये सिर्फ ये चीज सब तू छोड़ दे, बाकी का पूरा काम मैं करूंगा। You leave your land, you leave your father's house, you leave your country. When you leave all these things and begin to go to the land I show you, all these things, all this I will work in तू you. अपना देश छोड़, तू अपना पिता का घर छोड़, तू अपने नाते गोते छोड़ और तू देख मैं तेरे जीवन में क्या करता हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। All this sevenfold calling will be your portion. ये जो 7 पटी के आशीर्वाद है, ये तेरा वाटा होगा। And I am telling you friend today, और आज मैं आपसे कहता हूँ, let God do the work. परमेश्वर को ये कार्य करने दो। Let God works in you. परमेश्वर को आप में कार्य करने दो। You don't try to lift up your name. आप अपना नाम ऊंचा उठाने की कोशिश मत करो। Let God do it. परमेश्वर को करने दो। Now I want to come to one place और मैं एक जगह आना चाहता हूँ where God says, जहाँ परमेश्वर ने कहा, I will bless you. मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा, I will lift up your name. मैं तेरा नाम ऊंचा You उठाऊंगा shall be blessing to कि others. तू दूसरों के लिए आशीर्वाद ठहरेगा। He said, whosoever blesses you shall be blessed. उसने कहा कि अगर कोई तू दूसरों के, अगर कोई तुझे आशीर्वाद देता है तो तू दूसरों वो आशीर्वादित होगा। Whosoever curses you shall be cursed. अगर किसी ने तुझे श्राप दिया तो वो श्रापित होगा। In the all the family on the earth shall be blessed. कि सारे जो मनुष्य जातियां है, जो परिवार है, उसमें तू आशीर्वादित होगा। All this thing I will give you. ये सारी चीज मैं तुझे दूंगा। But before that he says, और उसके पहले उसने कहा when you leave everything, कि अगर तूने ये सब कुछ चीज छोड़े, I will make of you a great nation. मैं तुझसे एक बड़ा Hallelujah. मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। I हालेलुया। will make of you a great कि nation. मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। God said to Abraham, कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा I will make of you a great कि nation. मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र निर्माण करूंगा। You are one person, अभी तू अकेला व्यक्ति है, but I will make a nation out of कि you. मैं तुझसे अभी एक राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। Let me make of you. कि मुझे तुझसे करने दे, Let me make of you. मुझे तेरे द्वारा करने दे, The thing of God is very important. मुझे तुझको बनाने दे। आज परमेश्वर में बनना जरूरी है। Today we don't want God to be made. हाँ, आज हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमें बनाए। Without making we want blessing. बनाए बिना हम आशीर्वाद चाहते हैं। Without making we want and without blessing we want our name to be higher. बनाने बिना और आशीर्वाद बिना हम चाहते हैं कि हमारा नाम ऊंचा उठाया जाए। Let me tell you, मुझे एक चीज आपसे कहने दो। when God lift you up before you go, your name has reached there. अगर परमेश्वर आपको उठाता है, आप जाने से पहले आपका नाम उठाया जाएगा। You does not want God to make. अगर आप चाहते नहीं कि परमेश्वर आपको बनाए, Without being made, we want God to bless us. आप परमेश्वर के बनाना बिना ही परमेश्वर के आशीर्वाद चाहते हो। And without blessing, we want our name to be great higher. और आशीर्वाद के बिना ही आपका नाम आपको ऊंचा उठाना चाहते हो आप। And without being our name higher, we want to be blessing others. और अपना नाम ऊंचा उठाए बिना ही हम दूसरों के लिए आशीर्वाद ठहरना चाहते हैं। And we want God to curse those people who curse us. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को श्रापित करे जो हमें श्राप दे रहे हैं। And we want God to bless those people who bless us. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वादित करे जिसको हम आशीर्वादित कर रहे हैं। And without being made, और बनाने के सिवा हम चाहते हैं we want that our ministry to have the extension. बनाने के सिवा हम चाहते हैं कि हमारे सेविकाई बढ़े। Let me tell you, मुझे एक चीज आपसे कहने दो, how much God blesses you, जितना परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा, that how much God makes you, जितना परमेश्वर आपको बनाएगा, that much He blesses you. उतना वो आपको आशीर्वाद देगा। And how much God blesses you, जितना वो आपको आशीर्वादित करेगा, that much He lifts you higher. उतना ही आपको वो उठाएगा। How much we allow God to make us, that much only God can bless us. हम जितना परमेश्वर को बनाने दोगे, उतना ही परमेश्वर हमारा नाम उठाएगा। No, that much only God will bless us. हम जितना परमेश्वर को बनाने देंगे, उतना ही परमेश्वर हमको आशीर्वादित करेगा। God makes us, then He blesses. God makes us and then He blesses. परमेश्वर हमें बनाता है, हमें आशीर्वादित करता है। परमेश्वर हमें बनाता है और आशीर्वादित करता है। Yesterday I shared with you, कल मैंने आपसे कहा, in my yesterday's message, कल के संदेश में, that I shared with you, कि मैंने आपसे कहा abundance is in the life. कि जो विपुलता है वो जीवन में है। Abundance is in the life. विपुलता है जो वो जीवन में है। If you want abundance,
जो बहुताई है वो जीवन में है। If you want abundance, अगर आपको बहुताई से चाहिए, you have to have life. आपको जीवन चाहिए, Out of life, you cannot have abundance. कि जीवन बिना आप बहुताई नहीं पा सकते। And I shared with you मैंने आपसे कहा beautiful example कि मैंने एक उदाहरण दिया अच्छा of the butterfly. कि वो तितली का The how butterfly is comes out of the cocoon. कैसे वो तितली वो कोश के बाहर आती है। And I said और मैंने कहा the how much is made, कि जितना कितना वो बनती है that much it comes out. उतना ही वो बाहर आती है, How much it made inside, कि जितना वो अंदर बनती है it comes out. वो बाहर आती है। How much God makes you, जितना परमेश्वर हमको बनाता है that much He blesses you. उतना ही आपको वो आशीर्वाद देता How है। much God makes you, जितना वो आपको बनाता है that much He blesses वो you. आपको उतना ही आशीर्वादित करता Where है। our making is stop, कि अगर हमारा बनाना रुक गया, our blessing is stop. हमारा आशीर्वाद भी रुक जाता है। All sevenfold is stop. कि पूरे 7 पट्टी का आशीर्वाद जो है वो रुक जाता है। जब when you make God to make you, हम जब परमेश्वर को बनना देते हैं, हम परमेश्वर को जब बनाने देते हैं, that much God bless you. उतना परमेश्वर आपको आशीर्वादित करता है। Problem is today, आज समस्या ये है we come to Lord, कि हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, we receive Jesus, हम यीशु को स्वीकारते हैं, we are blessed, हम आशीर्वादित होते हैं, we are baptized, हम हमारा बपतिस्मा we होता are है, filled with the Holy Ghost, हम पवित्र आत्मा से भरते हैं and we want God to hurry up everything. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने ये सब कुछ जल्दी जल्दी करे। God bless me, परमेश्वर हमें आशीर्वादित कर, give me this, हमें ये दे, give me blessing, हमें आशीर्वाद दे, give me my name, हमें तू हमें हमारा नाम दे। give me all the sevenfold calling, ये जो 7 पट्टी के सारे जो बुलावे हैं, तू हमें दे, give me Lord, कि दे प्रभु, give me this, दे प्रभु, ये दे, give me bungalow, ये बंगलो दे give me प्रभु, car, कार दे प्रभु, give me wife, कि मुझे पत्नी दे give me प्रभु, husband, कि मुझे एक पति दे प्रभु, give me, give me, give me, give me, give me. दे प्रभु, दे 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 दे। Our song is always behind God is giving. कि हमारा गीत जो परमेश्वर के पीछे होता है कि दे, तू दे हमें परमेश्वर, Lord, परमेश्वर give me. तू दे, I'll take everything that you give me. मैं सब कुछ वो चीज दूंगा जो तू देता है। But let me tell you, मगर मुझे एक चीज कहने दो God आपसे, said to Abraham, कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा let me make you. कि मुझे तुझे बनाने दे, After making you, I will give you. तुझे बनाने के बाद मैं तुझे दूंगा। Today we don't want God to make us. आज हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमें बनाए। Many times we don't allow God to work in us. बहुत से बार हम नहीं चाहते कि परमेश्वर वो कार्य होने देते, Because making is not so good. कि जो बनना है वो इतना अच्छा नहीं होता। Sometime in making, God breaks us. कई बार परमेश्वर हमें बनाने में तोड़ता है, Many times God breaks us. कई बार परमेश्वर हमें तोड़ता है, God molds us. God shapes us. Sometimes it's painful experience. कई बार परमेश्वर हमें तोड़ता है, मोड़ता है और बनाता है, It breaks us. कि वो हमें मोड़ता है। And breaking is not so good. और जो तोड़ना है वो अच्छा नहीं होता। We want God to bless us. हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीर्वादित But करे, we don't want God to make us. और हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमको बनाए। Today many places आज बहुत सी जगह we can see हम देखते हैं people are not being made लोग बने नहीं है, and they want God to bless them. और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीर्वादित करे। God will not give you more than what you manage. परमेश्वर आपको उतना ज्यादा नहीं देगा जिससे ज्यादा आप संभाल पाए। God will not give you more than you manage. परमेश्वर आपको इतना नहीं देगा कि आप उसको संभाल पाए। In book of John is talking about branches. यूहन्ना के किताब में वो डालियों के बारे में कहता है, And the fruit comes on the branches. और जो फल आता है वो डालियों पे, He will not give so much of fruit that branch will be broken. कि वो इतने ज्यादा फल नहीं देगा कि वो डालियां टूट जाए। Before giving the fruit, कि वो फल देने से पहले He will make the branch strong. कि वो जो डालियां है उसको वो सामर्थ्यशाली बनाएगा। He will make that branch strong. कि वो फल देने से पहले वो डालिये को वो मजबूत बनाता है। Let me tell you, my friend, मुझे आज आपको एक चीज कहने दो, before God blesses you, He makes you strong. परमेश्वर आपको आशीर्वादित करने से पहले वो आपको मजबूत बनाता है, He makes you strong. वो आपको मजबूत बनाता है, And He will not give you more than what you cannot manage it. और वो आपको इतना नहीं देगा जितना आप संभाल नहीं पाओगे। You can get it from outside in a wrong way, आप वो किसी गलत तरीके से बाहर से मिल पाएगा आपको वो, but it will destroy your life. पर वो आपका जीवन खराब कर नाश कर देगा। Let God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वादित करने दो। Bible says, शास्त्र कहता है when God blesses you, He does not
adds sorrow along with it. जब परमेश्वर आपको आशीर्वादित करता है तो उसके साथ वो दुख नहीं देता। Let me tell you, my friend, मुझे आज आपसे एक बात कहने दो today many people do not want God to make of them. कि आज बहुत ऐसे लोग नहीं चाहते कि परमेश्वर उनमें से बनाए। We try to give a head to every great of man of God to lay hand and bless us. हम हमारा सर बहुत सारे जो परमेश्वर के सेवक हैं उनको देते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमें आशीर्वादित करें। But let me tell you, my friend, मुझे एक बात आपसे कहने दो, unless God makes you, the blessing will not come. जब तक परमेश्वर आपको बनाता नहीं है वो आशीर्वाद आपके पास आता नहीं है। Let God make of thee. कि परमेश्वर आपको बनाने दो। God said, I will make of thee a great nation. परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। And he said, और वो कहता है let me make of thee. कि मुझे तुझसे बनाने दे। Today I want to tell you, my friend, आज मुझे तुमसे कहना है, today people don't want God to make of them. आज लोग नहीं चाहते कि परमेश्वर उनको बनाए। My friend, मेरे मित्रों, when was the last that you know that God has made you someplace? वो आखिरी समय कब था जब आप जान चुके कि परमेश्वर ने आपको बनाया है? When was the last कब था वो आखिरी समय that you know that you have changed? कि आपको समझ में आया कि आप बदल गए हो? We are so clever looking at others. हम बहुत होशियार है कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं। We are more in looking at others. हम बहुत दूसरों की तरफ देखने में ज्यादा We know everybody's fault. हम दूसरों की जो गलतियां है वो हम देखते हैं। But how many of us knows कि हम में से कितने लोग जानते हैं where we have to कि change? कहाँ हमें बदलना है? Why our ministry is not progressing? क्यों हमारी सेवकाई बढ़ नहीं रही? Why blessings are not coming? क्यों आशीर्वाद नहीं आ रहे? Why all these hindrances are there? क्यों ये सब अलग अलग जो अड़खलने आ रही है वो क्यों आ रही है? Because someday I'm not allowing God to make of me. We have stopped making of God in our life. हमने रोक दिया है परमेश्वर को बनाना हमारे जीवन में। Our growth in God has stopped. परमेश्वर में हमें जो बनना है वो रुक गया है। I know many people. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, They died. वो मर गए। They thought one day God will use them mightily. उन्होंने सोचा कि परमेश्वर उनको महान रीति से उनका उपयोग करेगा। And I know them. और मैं उन्हें जानता हूँ That they died. कि वो मर गए। Let me tell you, my friend. आज मुझे तुमसे एक बात कहने दो Let God make of you. कि परमेश्वर को तुम में से बनाने दो। Surely God is calling for you. But without being made, God will not let you be blessed. निश्चित परमेश्वर के पास आपके लिए बुलावा है। परमेश्वर के बनाने बगैर आप आशीर्वादित नहीं होगे। Many times we do not know what is happening in our life. बहुत से समय हम नहीं जान पाते कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। We think हम सोचते हैं this person is doing like that. कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा That है, person is doing like कि वो that. व्यक्ति ऐसा कर We रहा है। wonder nothing is happening. हम सोचते हैं क्यों ऐसा क्यों We नहीं wonder हो- why God this thing in my हम life. सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये क्यों हो रहा है, Why like this is happening? क्यों ये चीज हो रहा है। Why you allow all these things? But sometime पर कई जगह, we do not understand पर कई समय हम समझते नहीं है that God is allowing all these things, so God is making us. कि परमेश्वर ये सब चीज होने देता है क्योंककि परमेश्वर हमको बना रहा है। In order to make us, कि हमें बनाने के लिए some places God separate us. कि कई जगह से परमेश्वर हमको विभक्त करता है। From some people God separate us. कई लोगों से परमेश्वर हमको विभक्त करता है। From some situation God breaks us. कि कई परिस्थितियों से परमेश्वर हमको तोड़ता है। अगर जो हम परमेश्वर का जो बना रहा है उसके लिए अगर जो हम ध्यान नहीं देंगे, अगर हम परमेश्वर का जो हम बनाना है उसके लिए हम ध्यान नहीं देते so we can miss तो हम वो खो चुकेंगे। blessings of God. तो हम वो खो जाएंगे वो परमेश्वर के जो आशीर्वाद है। One place Abraham said, एक जगह अब्राहम ने कहा what is the use, Lord? कि क्या उपयोग परमेश्वर, I have no son of my own. क्या फायदा परमेश्वर कि मुझे मेरा खुद का बेटा नहीं है, I don't have son of my own. कि मुझे मेरा खुद का बेटा नहीं है। But God was making of him. पर परमेश्वर उसमें से बना रहा था। It took 99 years for Abraham to be made in order to have the son called Isaac. कि अब्राहम को 99 साल लगे बनने के लिए और उसको पुत्र देने में जिसका नाम था इसहाक। Let me tell you, God called Abraham, and from Abraham God called him, and when he came to 99 years, that time God blessed him. परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम जब 99 साल का था तब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वादित किया। Till that time God was making Abraham. वो समय तक परमेश्वर अब्राहम को बना रहा था। But let me tell you, my friend, और मुझे आज एक चीज आपसे बोलने दो what God was making Abraham, कि जब
जब परमेश्वर अब्राहम को बना रहा था He was making Abraham a great nation. कि परमेश्वर अब्राहम से एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न करना चाहता था, And you can see today और आज हम वो देखते हैं that God has made great nation through Abraham. कि परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न किया है। And Abraham did not realize many times when God was making why these things happen. और अब्राहम कई बार जान नहीं पाया कि उसके जीवन में परमेश्वर क्या कार्य कर रहा था, Why God is telling him move from here. कि क्यों परमेश्वर कह रहा कि तू यहाँ से तू निकल, Why God separated sometimes some people from his life. क्यों परमेश्वर ने कई सारे लोगों को उसके जीवन में से हटाया। All ups and down Abraham was going through. नीचे ऊपर की जो परिस्थिति में से जो अब्राहम गया, But God was making him. तो परमेश्वर उसको बना रहा था। Let me tell you, आज मुझे आपसे एक बात कहने दो, blessing is very easy for God. आशीर्वाद देना परमेश्वर के लिए बहुत ही आसान है। Lifting up your name is very easy for God. आपका नाम ऊंचा उठाना परमेश्वर के लिए आसान है। Blessing others through you is very easy for God. आपके द्वारा दूसरों को आशीर्वाद करना परमेश्वर के लिए आसान है। Sixfold is very easy for God. जो 6 पटी का है वो बहुत परमेश्वर के लिए बहुत आसान है। But sevenfold, that making of thee, जो 7वां पटी का है जो हमको बनाना है, it took many years उसको बहुत साल लगे in a life of Abraham. अब्राहम के जीवन में। Today let God make you. आज आप परमेश्वर को बनाने दो। God cannot bless you without making. परमेश्वर आपको आशीर्वाद नहीं देगा जब तक वो आपको बनाता नहीं है। Today only one song in the churches. आज कलीसिया में सिर्फ एक ही गीत गाया जाता है, Give me, give me, give me, give me. दे प्रभु दे प्रभु दे प्रभु दे प्रभु। But let me tell you, मुझे आपसे एक बात कहने if दो, you don't allow God to make you, अगर आप परमेश्वर को बनाने नहीं दोगे, your song will remain song, will never come in existence. आपका गीत है जो वो गीत ही रहेगा, वो अस्तित्व में नहीं आएगा। God, let God make you. परमेश्वर को आपको बनाने दो। You know, my friend, आप जानते हो मेरे in one मित्रों, of the message I said, मैंने एक संदेश में कहा था, sometime कई बार out of people choice, लोगों की चुनाव से many things happen. कई सारे चीज होते हैं, But we need to depend on God's choice. पर हमें परमेश्वर के चुनाव पे निर्भर रहना है। God chose Saul कि परमेश्वर ने वो शौल को चुना as a king. राजा कहकर। Bible says, शास्त्र कहता है without being made, he was blessed. उसको बनाए बगैर ही वो आशीर्वादित हो चुका था, And God made him a king. बनाए बगैर ही वो आशीर्वादित हुआ और परमेश्वर ने उसको राजा किया। But he messed up. उसने पूरा उथल पुथल किया इजराइल राज्य को। He disobeyed God. उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, He caused people and God's servants to suffer. कि उसने लोगों को और परमेश्वर के जो सेवक है उनको Because he was तकलीफ में not, से जाने दिया, because he was not made. क्योंकि वो बनाया गया नहीं था। But look at David. मगर दावीद के पास आप देखो, Bible says, शास्त्र कहता है when God chose David, जब परमेश्वर ने दावीद का चुनाव किया, he was called वो उसको बुलाया गया था, in young days. उसको बुलाया गया था उसके जवानी में, He was ordained as young day. उसको अभिषिक्त किया था उसके जवानी में, But he was appointed in the age of 30 to become king. लेकिन उसको नियुक्त किया उसके वो जब 32 साल का हुआ तब। You know, when Joseph, योसेफ, when God chose him जब यूसुफ को परमेश्वर ने चुना around 17 years. 17 साल पहले, But let me tell you, मुझे आपसे एक कहने दो, when God anointed Joseph जब परमेश्वर ने यूसुफ का अभिषेक किया and called him, और उसको बुलाया, it was 17 years. जब परमेश्वर ने यूसुफ को अभिषेक किया वो 17 साल का था। Bible says, शास्त्र कहता है when he became the full grown minister next to king, like prime minister, next to Pharaoh, Bible says he was age of 30. कि वो 30 साल का था जब उसकी सेवकाई पूरी रीति से उसने उसकी सेवकाई पूरी रीति से शुरू की। From 17 to 30 years, 13 years God was making of them. 17 साल से लेकर 30 साल तक परमेश्वर उसको बना रहा था। To David and to Joseph, दावीद और यूसुफ के लिए God was making of them. परमेश्वर उनको बना रहा था। And after being made, और बनने के बाद God blessed them with the ministry. परमेश्वर ने उनको सेवकाई से आशीर्वादित किया। Let me tell you, my friend, मुझे आपको एक बात बताने दो, let God make of you. परमेश्वर को आप में से बनाने दो, Let God make of you. परमेश्वर को आप में से बनाने दो। When you read book of Jeremiah 18 chapter 1 to 6 verse,
जब हम इर्मिया की किताब 18वां अध्याय 1 से 6 वचन देखते हैं, in this chapter, ये अध्याय में God reveals to Jeremiah about the potter and the potter's house. परमेश्वर यिर्मयाह को प्रगटीकरण देता है वो कुम्हार और कुम्हार के घर के बारे में। And he said that there is a potter on the wheel is making a vessel. और उसने कहा कि वो एक कुम्हार है वो जो मट्टी का बर्तन बना रहा है वो चक्के के ऊपर। And while he was making the vessel, और जब वो मिट्टी का बर्तन बना रहा था, Bible says शास्त्र कहता है that vessel was marred under the hands of potter. और जो बर्तन है वो कुम्हार के हाथ के नीचे वो टूट गया। And he took again और उसने वापिस वो लिया and started making. और उसने शुरू किया बनाना। And God said और परमेश्वर ने कहा that can I not do with Israel? और परमेश्वर ने कहा क्या मैं इजराइल के बारे में ये कर नहीं सकता Has the potter कि जैसा वो एक कुम्हार clay under the hands of potter, कि जैसा वो मिट्टी जो कुम्हार के हाथ के नीचे होती है, so are you in my hand, Israel. वैसे ही इजराइल आप मेरे हाथ के नीचे हो। Let me tell you, मुझे एक आपसे बात कहने दो God is making of you. कि परमेश्वर आपको बना रहा है That vessel was marred under the hands of potter. कि जो बर्तन था वो कुम्हार के हाथ से टूट गया। Hey, let me tell you, हे मुझे आपसे एक बात कहने दो, no matter how many times you are broken, doesn't matter, you are broken under the hands of God. कितने बार भी आप टूटते हो लेकिन आप जितने बार भी टूटते हो आप परमेश्वर के हाथ में हो। Let me tell you, मुझे आपसे एक बात कहने दो, you are in hands of God. आप परमेश्वर के हाथ में हो। No matter how many times you are broken, कितने बार भी आप टूटते हो, don't worry तुम चिंता मत करो about brokenness. कि जो टूटना है उसके बारे में। God will shape you again. परमेश्वर आपको पुनर्रीति से जोड़ेगा। God will not give up on you. परमेश्वर आपके ऊपर, Your brokenness is God is shaping you. परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपको बनाएगा। In your brokenness, God is making. आपको जो टूटना है उसमें परमेश्वर आपको बनाएगा। One side. एक जो भाग है, Have you ever seen potter? आपने कहीं देखा है कुम्हार को From up, potter is hammering, कि वो कुम्हार वो मिट्टी को ऊपर से मारता है and from inside और अंदर से is putting hand. वो अपना हाथ लगाता है। Let me tell you, मुझे आपको एक बात कहने दो, outside God will break you, but inside God will shape you. बाहर से परमेश्वर आपको तोड़ेगा लेकिन अंदर से परमेश्वर आपको People बनाएगा। people will see you broken, but God will shape you. लोग आपको टूटा हुआ देखेंगे लेकिन परमेश्वर आपको अंदर से आकार देगा। God is shaping you. परमेश्वर आपको आकार दे रहा And है one day everybody will see और एक दिन सब आपको देखेंगे that your brokenness कि आपको जो वो टूटा गया है is God was shaping you. कि परमेश्वर आपको बना रहा था, God was making you. कि परमेश्वर आपको आकार दे Don't रहा worry था। how many times people have broken you. चिंता मत करो कि कितने बार ही लोगों ने आपको अगर Don't तोड़ा matter है, how many times people have come against you. कि चिंता मत करो कि लोग कितने बार भी अगर लोग आपके खिलाफ आते No matter हैं, how many times your heart is कि broken. कितने बार भी आपका अगर हृदय टूटता है, Your own may break you. कि आपके जो खुद के लोग हैं वो आपको Your तोड़ेंगे, friend will break you. आपके जो मित्र है वो आपको तोड़ेंगे, But your brokenness, लेकिन वो जो आपका टूटना जाना है God will shape you. वो परमेश्वर उसको आकार देगा। You are in the hands of God. आप परमेश्वर के हाथों में है। And I have a good news for और you. मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, Nobody can snatch you from the hands of और God. आपको परमेश्वर के हाथों से कोई भी छीन नहीं पाएगा। Number 2, दूसरी, don't say how long, God. आप ये दूसरी चीज, आप ये मत कहो कि परमेश्वर कितनी देर, How long, God? कितना देर प्रभु। Tell God, please make of me. परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मुझसे तू बना। Let me tell you, delay is not denied. विलंब है वो नाकारना नहीं है, Delay is not denied. विलंब है वो नाकारना नहीं है। If God is delaying in your life, अगर परमेश्वर आपके जीवन में विलंब कर रहा है He is not denied. तो वो आपको नाकार नहीं I रहा। have a good news for you. मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, When God is delaying and God is making you longer and God is shaping you longer, because you have the bigger call. क्योंकि आपका बुलावा बड़ा है। Again, I will tell you, वापिस मैं कहता हूं, if God is delaying in making of you, अगर परमेश्वर आपको बनाने में
देर लगा रहा है because you have a bigger call. क्योंकि आपके पास एक बड़ा बुलावा है। I have a good news. मेरे पास एक अच्छी खबर है, Rejoice. आनंद करो। Don't look to this one and that one. आप इसकी तरफ और उसकी तरफ मत देखो। Surely God's hand is upon you. निश्चित परमेश्वर का जो हाथ है आप पर है, Surely God is doing कि something. निश्चित परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तो कार्य कर रहा Don't है। worry about others' success. चिंता मत करो जो दूसरों का जो Don't worry about others' blessing. दूसरों के आशीर्वाद के लिए आप चिंता मत करो। Don't say, why me, Lord? आप मत कहो कि क्यों मैं प्रभु, Because God is a bigger blessing for क्योंकि you. परमेश्वर के पास आपके लिए बड़े आशीर्वाद है। One day, एक दिन I was called to one of the pastor's church. एक दिन मुझे एक पासबान के कलीसिया में बुलाया था। He got a building of the church. उनके पास एक बड़ी बिल्डिंग है कलीसिया की। I was sitting next to him मैं उनके बाजू में बैठा था and he was inaugurating his building. कि वो अपने जो नया बिल्डिंग था उसका वो उद्घाटन समारोह था। And when we were sitting, और हम जब बैठे थे, he looked at me उन्होंने मेरी तरफ देखा and he smiled और वो हंसे and he said, और उन्होंने कहा, Pastor Joshua, पास्टर जोशुआ, God gave me building before you. परमेश्वर ने आपसे पहले मुझे बिल्डिंग दे दी। He said उन्होंने कहा that we both started, कि हम दोनों ने एकत्र शुरू किया, but God gave me building before you. कि परमेश्वर ने आपसे पहले मुझे वो बिल्डिंग दी। I said, thank God. मैंने कहा परमेश्वर को धन्यवाद, I'm so happy for you. मैं बहुत आनंदित हूँ आपके लिए। But that time I was struggling for building. Give us also building for the church. परमेश्वर हमारे कलीसिया के लिए भी आप एक बिल्डिंग दो। And I said, Lord, और मैंने कहा प्रभु, why like this? ये ऐसा क्यों प्रभु? Why you gave him before me? मुझसे पहले तूने उसको क्यों दिया I प्रभु? started ministry before him. मैंने उससे पहले सेवकाई शुरू किया प्रभु। And then और उसके बाद I felt the Lord was saying, मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे कह रहा I है। looked at his building मैंने उसके बिल्डिंग की ओर देखा and praise God, nobody is small and nobody is big. और परमेश्वर की स्तुति हो, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। But he had a small building, उनके पास एक छोटी बिल्डिंग थी, 20 by 40. 20 बाय 40 गज की। And they were very happy and I was also rejoicing with them. वो बहुत आनंदित थे और मैं भी उनके साथ आनंद मना रहा था। And God says, और परमेश्वर ने कहा, what is your vision? आपका जो दृष्टांत है वो क्या है? Is your vision this building? आपका दृष्टांत ये बिल्डिंग है? I said, no. मैंने कहा नहीं, Let me tell you, मुझे आपसे कुछ कहने दो। the longer God makes you, जितना विलंब करता है परमेश्वर आपको बनाने के लिए, the longer God bless you, परमेश्वर उतना ही विलंब करता है आपको आशीर्वाद देने के लिए, the greater call that you have. उतना ही महान बुलावा आप में होता है। Bible says, शास्त्र कहता है, God chose Moses. पर पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने मूसा को चुना। You know, let me tell you, मुझे एक बात आपसे कहना है, if you want to be a fridge mechanic, अगर आपको एक फ्रिज का मैकेनिक बनना है, it takes 3 months. उसको 3 महीना लगता है। If you want to be a AC mechanic, अगर आपको एसी का मैकेनिक बनना है, it takes 3 months. उसको 3 महीना लगता है। If you want to be a 2-wheeler and 4-wheeler mechanic, अगर हमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर अगर हमें मैकेनिक बनना है, it takes around 2 years. उसको 2 साल लगते हैं पढ़ने के लिए। But if you want to be a doctor, अगर आपको डॉक्टर बनना है, it took many years. उसको बहुत वर्ष लगते हैं। The more bigger call, कि जितना बड़ा बुलावा, that long is a making. उतना ही वो बनने का जो कार्य वो बड़ा होता है। Doctor has to be so many years. कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे वर्ष जाना पड़ता है। Engineer has to be so many years. इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारे वर्ष देना पड़ता है। Let me tell you, मुझे एक बात आपसे कहने दो, Moses was called मूसा को बुलाया गया था from the childhood. बचपन से, Moses was called, मूसा को बुलाया गया था। and let me tell you, और मुझे एक बात आपसे कहना है, it took 85 years for God to make Moses. 85 साल लगे मूसा को उसकी सेवकाई शुरू करने के लिए। After 85 years, 85 साल के बाद, when he was age of 85, वो जब 85, then his ministry began. उसकी सेवकाई तब शुरू हो गई। He was called, वो बुलाया गया था, he was anointed, उसको अभिषेक किया गया but he था, was appointed in the age of 85. पर 85 साल के वक्त उसको नियुक्त किया गया। So long God was making him. इतने समय परमेश्वर उसको बना रहा था। But let me tell you, और मुझे आपसे एक बात कहने the दो biggest ministry God gave him, कि एक बड़ी सेवकाई परमेश्वर ने उसको दी, that 3.5 million people, कि 35 लाख लोगों को, approximately 3.5 million people, करीब 35 लाख लोगों को, God delivered through him. करीब 35 लाख लोगों को परमेश्वर ने उसके द्वारा छुड़ाया। His one step उसका एक पाँव would encourage
3.5 million people step to go ahead. उसका एक कदम 35 लाख लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन बना। God made of him. परमेश्वर ने उसको बनाया That whole nation was delivered. कि पूरा राष्ट्र, Was delivered. परमेश्वर ने उसको बनाया कि पूरा राष्ट्र उसके द्वारा छुड़ाया गया। Let me tell you, मुझे आपसे एक बात कहने दो the biggest ministry God gave him. कि जो बड़ी सेवकाई परमेश्वर ने उसको दी, Today whole world knows about Moses. आज पूरा जग मूसा को जानता है। But 40 years in the wilderness. 40 साल वो जंगल में जो विचार से वो जा रहा था Why God? कि क्यों परमेश्वर, Why like this कि God? क्यों परमेश्वर ऐसा, Why I had to give up कि everything? क्यों मुझे ये सब कुछ त्यागना पड़ा, Why I'm in this jungle? कि क्यों मैं आज ये जंगल में हूँ, What is happening with my life? क्या हो रहा है मेरे जीवन के साथ। Let me tell you, my friend. मुझे आपको एक चीज बात बताने दो God was making of him. कि परमेश्वर उसमें से बना रहा था And one day, और एक दिन he heard from God. और उसने परमेश्वर से सुना, He said, Moses, Moses. उसने कहा मूसा मूसा। You know, after 85 years of marriage, 85 साल के बाद जब वो बना, God says, परमेश्वर ने कहा now you are going to go, I send you against the nation. कि अब मैं तुझे राष्ट्र के खिलाफ भेजूंगा, I'll make you stand against the Pharaoh. कि मैं तुझे फिरौन के खिलाफ खड़ा करूंगा। God raised him up to such a level. कि परमेश्वर ने उसको ऐसे रीति से उठाया, He made him such a way कि उसको ऐसे रीति से बनाया, that he shook the foundation of Egypt. Praise the Lord. उसने मिस्र का पूरा पाया हिला दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Don't say it is late, God. आप ये मत कहो कि परमेश्वर आप बहुत देर हो चुकी है। Don't say, Lord, it is late. आप ये मत कहो कि परमेश्वर आप बहुत देर हो चुकी है। Let me tell you, मुझे आपसे एक बात कहने दो he was making Abraham. कि वो अब्राहम को बना रहा था। Age of 99, God gave him son. 99 साल में परमेश्वर ने उसको एक पुत्र देके आशीर्वादित But he किया। was making him till years of 99. लेकिन वो 99 साल तक परमेश्वर उसको बना रहा था। But his ministry was great nation. कि उसका जो सेवकाई था वो एक महान राष्ट्र था Whole world shall be blessed. कि पूरा राष्ट्र आशीर्वादित होगा। Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you, my friend, मुझे आपसे एक no बात matter कहने how दो long God कि takes, कितना भी समय परमेश्वर लेता है, let people laugh at कि you. लोगों को आप पे हंसने Let दो, people put you कि down. आपको लोगों को नीचे देखने दो, Let people think nothing is कि happening. लोगों को ऐसे सोचने दो कि कुछ हो नहीं रहा। Let me tell you, my मुझे friend, आपसे एक बात कहना है God has not given up on कि you. परमेश्वर ने आप पे हार नहीं मानी। You are still under the hands of God. आप अभी भी परमेश्वर के हाथों में हो And let God make of you. और परमेश्वर को आपको बनाना दो। When God makes you, He will bless you. और परमेश्वर जब आपको बनाएगा तो वो आपको आशीर्वाद देगा Whatever blessing you want, कि कौन सा ही आशीर्वाद आपको जो चाहिए God will bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेगा। Stop, रुको stop singing song, give me, give me, give me. रुको वो गीत गाना, दो परमेश्वर दो परमेश्वर दो परमेश्वर। Now start singing song, make of me. शुरू करो ये गीत गाना कि परमेश्वर तू मुझसे बना, Lord, make of me. परमेश्वर तू मुझको बना, Make of me, Lord. मुझको बना And परमेश्वर। when God makes you, और जब परमेश्वर आपको बनाएगा He'll bless you. वो आपको आशीर्वादित भी करेगा। Hallelujah. हालेलुया। We can see in book of Luke 15th chapter हम लूकस की 15वां किताब में हम देखते हैं and 12th verse, अब 12वें अध्याय में where we can see the story of prodigal son. हम लूकस की 15वें अध्याय में और 12वें वचन में देखते हैं कि वहां पे उड़ाऊ पुत्र के बारे में कहा गया है। This prodigal son said, ये उड़ाऊ पुत्र ने कहा Father, give me of my share. कि पिता मुझे मेरा हिस्सा दे दो, Afterwards, he lost everything. और उसके बाद उसने वो सब कुछ गवाया। And Bible says, और शास्त्र कहता है he came to place where he could eat the food of pigs. और वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे वो सूअर का अन्न खा रहा था, And he began to realize, और उसको वो चीज की जानी हुई the servants of my father's कि house, मेरे घर के जो मेरे पिता के घर के जो सेवक है they have more than me. उनके पास मुझसे ज्यादा है। Bible says, शास्त्र कहता है he got up वो वहां से उठा and he came to father. और वो अपने पिता के पास वापिस आया। And listen, और सुनो what he said this time. और इस बार उसने क्या कहा, He said, Father, उसने कहा पिता make of me, पिता मुझे बना, make of me one of your servants. पिता मुझको तू तेरा एक सेवक बना। Now he is not saying, bless me. अभी वो नहीं कह रहा कि तू मुझे आशीर्वादित कर, He is not saying, give me. अभी वो नहीं कह रहा कि तू मुझे दे, He said, make me. वो कहता है कि तू मुझे बना। Jesus said, यीशु ने कहा follow me. मेरे पीछे चलो, I will make of you a fisher of man. मेरे पीछे चलो कि मैं तुम्हें एक मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊं। God specializes in making. और परमेश्वर बनाने में माहिर है। Let God make you. परमेश्वर आपको बनाने दो। God cannot bless you without making. परमेश्वर आपको आशीर्वाद नहीं दे पाएगा जब तक आप बनते नहीं हो। Today ask God,
आज आप परमेश्वर से पूछो, God, make me, परमेश्वर मुझे बना, make of me. परमेश्वर मुझको बना। When you make me, जब आप मुझको बनाओगे, when God make you, जब परमेश्वर आपको बनाएगा, He will bless you. तो आपको वो आशीर्वादित करेगा। And when He bless you, और जब वो आपको आशीर्वादित your करेगा, name will be lifted तो high. आपका नाम ऊंचा उठाया When जाएगा। your name will be lifted जब high, आपका नाम ऊंचा उठाया जाएगा, you shall be blessing to others. तब आप दूसरों के लिए आशीर्वाद ठहरोगे। And when you are blessing to और others, जब आप दूसरों के लिए आशीर्वाद ठहरोगे, whosoever curses you, God will curse them. जो कोई आपको श्राप देगा, परमेश्वर उसको श्रापित करेगा। Whosoever blesses you, God will bless them. जो कोई आपको आशीर्वाद देगा, परमेश्वर आप उसको आशीर्वादित करेगा। I want to tell you last one story. मुझे आपको एक आखिरी एक कथा कहने दो। There was one big tower was made. यहाँ पे एक बड़ा टावर बनने वाला था। And while this tower was made, जब ये टावर बन रहा था, they were taking stones and making the tower. वो एक पत्थर ले रहे थे और वो टावर बना रहे थे। And all the stones were chipped and made nicely. सब पत्थरों को तराशा गया और वो टावर के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। But one stone पर जो पत्थर था, was fallen over there. वो वैसे ही वहां पे था, गिरा। Nobody was taking care of कोई it. भी उसको देख नहीं रहा था। And this stone, और ये जो पत्थर था, whole building was made. पूरी इमारत बन चुकी थी। And this stone was washing all the stones. और ये जो पत्थर था, वो सारे पत्थरों को देखता How nicely था all the stones were taken. कि कितने अच्छे रहते से ये सारे पत्थरों को ले जाया गया। And building was made. और वो बिल्डिंग पूरा किया। And this stone और ये जो पत्थर था, was crying ये पत्थर रो रहा था that nobody is using me. कि कोई भी मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहा। People are walking over me. और वो लोग मेरे ऊपर से जा रहे हैं। I am under the feet of man. मैं लोगों के पैर के नीचे हूँ। And they keep on hammering me और वो मुझे मार रहे हैं। from here and from there. यहाँ से वहां से They keep on hammering me. वहाँ वो मुझे मार रहे हैं। It was long time. ये बहुत सा समय लगा। After all the building was made, ये सारी पूरी इमारत बनने के बाद everybody looking at the building. सबने वो बिल्डिंग की तरफ देखा The building was beautiful. कि वो बिल्डिंग बहुत अच्छी थी दिखने And को। the stone thought, और ये पत्थर को ऐसे लगा I am left behind. कि मुझे पीछे छोड़ा गया I है। am good for nothing. मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। I am just useless. मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। But suddenly, पर अचानक रीति से after the building was made, पूरी इमारत या पूरी बिल्डिंग बनने के बाद they picked up the stone. उन्होंने वो पत्थर उठाया। They cleaned the stone. वो पत्थर को उन्होंने साफ किया। And they made the pinnacle of that building. और उन्होंने वो बिल्डिंग का शिखर करके उसको बिठाया। Hallelujah. हालेलुया। They took that stone और उन्होंने वो पत्थर लिया and they make the pinnacle. और उन्होंने वो शिखर उसको बनाया। Let me tell you, my friend. मुझे एक बात आपसे कहने You दो। may think God is not using you. आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर You आपको may उपयोग नहीं think कर you रहा are है, useless. कि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ काम You के may नहीं think हो, nothing is happening. आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, But God is working in you. पर परमेश्वर आप में कार्य कर रहा है। Day will come एक दिन आएगा where God will lift you up कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा and everybody will have to look up to look at you. और सारे लोगों को आपको ऊपर देखना पड़ेगा, आपकी तरफ। Isaiah 17:7 say, that day वो दिन you will turn to look at your maker कि आप अपने उत्पन्नकर्ता के पास देखोगे and you will have respect for him. और उसके लिए आपके पास आदर होगा, You will thank him. आप उसको धन्यवाद करोगे। Let me tell you, मुझे आप से एक बात कहने दो day will come, कि एक दिन ऐसा आएगा you will thank him. कि आप उसको धन्यवादित You करोगे, will have respect for your आप maker. उसके लिए आदर रखोगे। You will say, God, I did not know आप कहोगे कि परमेश्वर मैं जानता नहीं था that you are making of कि me. आप मुझ में से बना रहे हो। Let God make of you. परमेश्वर को आप में से बनाने How दो। much God makes you, that much he bless you. कितना परमेश्वर आपको बनाता है उतना ही वो आपको आशीर्वादित How करेगा। much he makes you, that bless you. कितना परमेश्वर आपको बनाएगा उतना ही वो आपको आशीर्वादित करेगा। Some 30, some 60, some कई 100. 30, कई 60 और कई 100 पति में Life is in your hand. कि जो जीवन है वो आपके हाथ में है। Stop saying, give me, give me, give me. मत कहो, रुको कहना कि दो परमेश्वर दो परमेश्वर दो परमेश्वर। Now start saying, make of me. शुरू करना परमेश्वर कि मुझ में से तू बना, Make me, Lord. मुझे बना परमेश्वर, Make me, Lord. मुझे बना And परमेश्वर। as you tell God to make you, और जैसे आप परमेश्वर को बनाओगे, आपको बनाने के लिए, the work of God तो परमेश्वर का जो कार्य है will continue. आप में से चालू रहेगा। Don't worry कि तुम चिंता मत करो, what situation you are going कौन through. से भी समस्या से आप जा रहे हो, You are under the hands of God आप परमेश्वर के हाथों में हो and God is making और of you. परमेश्वर आपको बना रहा है। God bless you today. परमेश्वर आपको आज आशीर्वाद I'm दे। so happy to preach this message to मैं you. बहुत आनंदित हूँ कि मैं आज ये संदेश आपको दे पाया That God said to Abraham, कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा I will bless कि you. मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा, I will lift up your मैं name. तेरा नाम ऊंचा उठाऊंगा। God said to Abraham, परमेश्वर ने You अब्राहम shall से be कहा blessing to कि तू others. दूसरों के लिए आशीर्वाद ठहरेगा। I will curse what they curse you. मैं शापित करूंगा जो
तुझे श्राप, I will bless them who bless you. मैं श्राप दूंगा जो तुझे श्राप देते हैं, और But- मैं आशीर्वाद दूंगा जो but- तुझे आशीर्वाद देते हैं। I will make of you a great nation. मगर मैं तेरे से एक राष्ट्र उत्पन्न I have a करूंगा। good news for you. मेरे पास आपके लिए एक उत्तम अच्छी God खबर है call is a great nation to you. कि परमेश्वर का जो बुलावा है वो एक बड़ा राष्ट्र है आपके लिए। When God calls you, जब परमेश्वर बुलाता है, He doesn't call you for small thing. वो छोटे चीज के लिए आपको बुलाता नहीं। When God calls you, जब परमेश्वर बुलाता है, God has a bigger calling for you. परमेश्वर के पास एक बड़ा बुलावा है आपके You are लिए। called by God. आपको परमेश्वर के द्वारा बुला गया He है। said to Abraham, I will make you a great nation. उसने अब्राहम से कहा कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। When God gives you, people will know this is not yours, this is some God. जब परमेश्वर आपको देगा कि लोग जानेंगे कि ये आपके नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा है। And people will say, surely this is God's doing और- and this is marvelous in our eyes. और लोग निश्चित कहेंगे कि ये परमेश्वर का कार्य है और हमारी नजर में ये अद्भुत है। God will work in you. परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा And surely, और निश्चित God blesses you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। Don't worry about yourself. आप चिंता मत करो आपके बारे में, Let God make of you. परमेश्वर को आप में से बनाने दो। And when God makes you, और जब आपको बनाएगा परमेश्वर, God will bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वादित Thank करेगा। God धन्यवाद परमेश्वर that you are under the hands of God. कि आप परमेश्वर के हाथों के नीचे हैं And He is the potter और वो एक कुम्हार है and you are the clay. और आप एक मिट्टी हो And let Him make of you. और वो आपको उसमें से बनाने दो।
यही मेरी दुआ। Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. As we come together जैसे हम एकत्रित हुए हैं for this communion service, ये प्रभु भोज के समय में, I want to give one or two instruction. मुझे आपको एक और दो सूचना देना है। Number first, I want to tell you, पहली सूचना ऐसी है, don't give this communion, this bread and this wine, ये जो रोटी और ये दाखरस जो है वो किसी और को न देना, who do not know Jesus Christ as personal Savior and the Lord, कि जो प्रभु यीशु को एक उद्धारकर्ता करके जानता नहीं है उनके जीवन में, and who is not baptized and not sure of forgiveness of their sins. कि वो जानता नहीं है कि अगर उनका बपतिस्मा नहीं हुआ है और वो जानता नहीं है कि उनके पाप की क्षमा हो चुकी है। Don't give to any of your family members or any outsider who are not in Christ, कि जो परमेश्वर मसीह में नहीं है वो जो बाहर के है उनको आप ये मत दो, because this will not bless them. कि ये उनको आशीर्वाद नहीं ठहरेगा। Number two, दूसरी जो सूचना है, Bible says, शास्त्र कहता है do not participate unworthily. कि अयोग्य रीति से आप इसमें भाग न ले, There are some weak, कि क्योंकि उसमें आप कई लोग दुर्बल है, there are some sick, कि कोई लोग रोगी है, and there are some sleep. कि और कोई लोग सो चुके हैं, मर गए हैं, They died वो मर गए हैं, because they participated unworthily. कि जो उन्होंने ये विधि में अयोग्य रीति से भाग लिया। Now this brings fear upon us. इसके लिए हम पर एक डर हमें लाता है। But let me tell you, मगर मुझे आपको एक बात बताने दो, this is not fear, this is the blessing. कि ये डर नहीं है पर ये आशीर्वाद है, This is the grace. कि वो एक कृपा है। Now when I said, जब मैं कहता हूँ do not participate कि unworthily, अयोग्य रीति से भाग मत लो, suddenly fear comes. अचानक से रीति से वो डर आ जाता But है। let me tell you, मगर मुझे आपसे एक बात कहने दो, not even one person कि एक ही जो व्यक्ति who is 100% perfect to touch this communion. कि जो 100% जो परिपूर्ण है वो ये भोज में भाग लेने के लिए, This is God's grace and forgiveness. कि ये परमेश्वर की कृपा है और क्षमा है। But let me tell you, मगर मुझे आपसे एक बात कहना है, what is the meaning of unworthy? अयोग्य रीति से भाग लेना, इसका अर्थ क्या There are है? many are weak, कि उसमें से कोई लोग दुर्बल है, many are sick, कोई लोग रोगी है and many died. और बहुत से मर गए। You know why? क्यों मालूम है आपको? Because they participate unworthily. क्योंकि उन्होंने वो भाग लिया अयोग्य रीति से। What is the meaning of participating unworthily? क्या है वो अयोग्य रीति से भाग लेना? यानी Means not believing on the work of God which completed on the cross. वो कलवरी के क्रूस के ऊपर जो यीशु ने कार्य किया उसके ऊपर विश्वास न रखना, Not believing that Jesus has healed you. कि ये विश्वास न रखना कि यीशु ने आपको चंगाई दी है, Not believing that Jesus has forgiven you. कि ये विश्वास नहीं रखना कि यीशु ने आपको क्षमा किया है, Not believing that Jesus has blessed you. कि ये विश्वास नहीं रखना कि यीशु ने आपको आशीर्वादित किया है। If you do not believe, अगर आप विश्वास नहीं करते हो, then you are participating unworthily. जब आप इसमें भाग लेते हो वो अयोग्य रीति से But होता this है। bread and wine shows us पर ये रोटी और ये दाखरस दिखलाता है, and remind us हमें याद दिलाता है the death and resurrection of Jesus कि यीशु Christ. का मरण और यीशु का पुनरुत्थान, That he died for us कि वो हमारे लिए मरा and he rose again from the dead. और वो Rose again और from वो the dead. वापस जी उठा। So if somebody tells you अगर कोई आपसे कहता है unworthy means fearful, अयोग्य रीति से यानी डर के द्वारा, don't come to them. कि आप उनकी मत सुनो। Let me tell you, मुझे आपको एक बात कहने दो, unworthy means not believing in Christ. अयोग्य रीति से यानी परमेश्वर यीशु पे विश्वास न रखना। Let us participate believing in Christ, हम इसमें भाग ले मसीह पे विश्वास के द्वारा, that Jesus has forgiven all my sins. कि यीशु ने मेरे सारे पाप क्षमा किए हैं, By his stripes I am healed. उसके बेटे फटकों से मुझे आरोग्य मिला है, Jesus is reconciling me back to God. कि यीशु ने मुझे परमेश्वर की ओर समेट किया है, So let us happily कि participate. हम आनंद रीति से इसमें भाग ले And God bless you. और परमेश्वर आपको आशीर्वाद। As we come together, जैसे हम एकत्रित हुए हैं, I want to read from book of 1 Corinthians 11 chapter हम पहले कुरिन्थियों की 11वें अध्याय से पढ़ेंगे and 23rd onward. और 23वें वचन के। For I have received of the Lord that which also I deliver unto you,
that the Lord Jesus, the same night when he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup." जो परंपरा मैंने आपको सौंपी है वो मुझे प्रभु से प्राप्त हुई है। अर्थात जिस रात को प्रभु यीशु को पकड़वाया गए, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा और कहा, "यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति के लिए करो।" इस तरह भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लेकर कहा, "यह कटोरा मेरे ही रक्त द्वारा स्थापित नया विधान है। जब जब तुम उसमें में से पियो तो यह मेरी स्मृति के लिए करो। इस प्रकार जब जब आप यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हो। इसलिए जो व्यक्ति अयोग्य रीति से यह रोटी खाता है, यह प्रभु के कटोरे में से पीता है, वो प्रभु की देह और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य को यह रोटी खाए और इस कटोरे में से पिए। Let us examine ourselves. हम हमारे अपने आप को हम परीक्षित करें Death and resurrection of Jesus Christ. कि यीशु क्रिस्त के जो मरण और जो पुनरुत्थान है, Do I believe his forgiveness? कि हम उसमें विश्वास रखते हैं उसकी क्षमा में। Do I believe his healing? क्या हम विश्वास रखते हैं उसके आरोग्य में? Do I believe his क्या- blessing? क्या हम विश्वास रखते हैं उसके आशीषों में? There are many participants did not believe that Jesus healed them and they died. कितनों ने उसमें भाग लिया और विश्वास नहीं रखा कि यीशु ने उनको चंगाई दी और वो मर गए। Many कितने सारे did not believe उन्होंने विश्वास नहीं रखा that Jesus has forgiven them कि यीशु ने उनको चंगाई दी and participate और उसमें वो भाग लिया उन्होंने, and remain weak और वो वही दुर्बल रहे and remain sick. और वही वो रोगी रहे। Examine yourself. आपका परीक्षण करो Do you believe कि आप विश्वास रखते हो that Jesus has died for you? कि यीशु क्रिस्त आपके लिए मरा, He has risen from the कि dead. यीशु क्रिस्त आपके लिए उसमें से जी उठा। This bread and wine ये जो रोटी और ये दाखरस जो है remind us हमें वो याद दिलाता है death and resurrection of Jesus कि Christ. यीशु का मरण और पुनरुत्थान। He says, as many as time you do that, कि वो कहता है कि जितने बार भी आप ये करोगे remember me. मेरी स्मृति करो। Today, आज book of Acts says प्रेषित की किताब कहती है that home to home they broke the bread. कि घर घर में जाके उन्होंने रोटी अब तोड़ी। That revival came. कि जो संजीवन आया जब उन्होंने घर घर में जाके वो रोटी तोड़ी। Today, आज you are in your home, आज आप आपके घर में हो, but not only home, कि घर में ही नहीं but you are not outside the church, you are inside the कि church. आप कलीसिया के बाहर नहीं हो, आप कलीसिया के अंदर हो। Because we believe church is not the building, church is the people. कि हम विश्वास रखते हैं कि कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया लोग है। So let us reverend God कि हम परमेश्वर को आदर दें and will participate. और हम उसमें भाग लें। Father, in Jesus' name, प्रभु पिता यीशु के नाम से I thank and praise you for this bread and this cup. मैं धन्यवाद देता हूँ आपको इस रोटी के लिए और इस प्याले I के लिए। ask for your blessing upon this bread and this cup. मैं मांगता हूँ परमेश्वर आपके आशीर्वाद ये रोटी और ये प्याले के लिए। Let this bread and this cup not bring condemnation but forgiveness and healing and blessing to the body of ये Christ. जो प्याला और ये जो रोटी है और ये जो प्याला है वो हम पर कोई भी दोष पड़ने पर आरोग्य और क्षमा हमारे जीवन में लाए। We pray, Master, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु bless every person प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वादित कर and strengthen every person और हर एक को तू बल दे and let every person और allow themselves to be made by you. और हर एक व्यक्ति तेरे द्वारा बनने के लिए तैयार हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 Body of Christ यीशु का शरीर broken for us. हमारे लिए तोड़ा गया।
Let us all participate together. Blood of Christ was shed for us. और यीशु का लहू हमारे लिए बहा गया। Let us all participate. प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वक्त के लिए। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद स्तुति आराधना का अर्पण करेंगे कि प्रभु ने इस वक्त हमारे जीवन के अंदर कार्य किया, और उसकी स्तुति आराधना करेंगे कि प्रभु महान है, वो आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ग्रेट लविंग हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, in Jesus name यीशु के नाम से we come before you. हम आपके सामने आते We हैं। thank you for this time, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के for लिए, thank you for this table. कि ये मेज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you Lord धन्यवाद प्रभु for forgiving our कि sins, कि हमें क्षमा, हमारे पापों की आपने क्षमा की, healing every body हमारे शरीर को आपने चंगाई दी, and blessing every और person. हम हर एक व्यक्ति को आपने आशीर्वादित We किया। also remember हम स्मृति रखते हैं प्रभु all those members of our church कि वो सारे लोग जो हमारे कलीसिया के, who are out of church, कि जो हमारे कलीसिया के बाहर है, who are out of India. कि जो भारत देश के बाहर है, We commit those members at your हम feet. उन सारे लोगों को आपके चरण सौंप, हाँ आपके चरण लाते हैं। We pray, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, Lord bless them with all the blessing. परमेश्वर तू सारे आशीषों से उनको We pray आशीष for दे। your special protection upon them. हम आपका एक विशेष आपका एक संरक्षण मांगते हैं परमेश्वर उनके ऊपर। Answer they pray. उनके प्रश्नों को उत्तर दे प्रभु तू, Let your blood strengthen them कि तेरा लहू उनको सामर्थ्य दे प्रभु, and give them, Lord, और उनको दे प्रभु the life and life abundant. कि वो जीवन और विपुल जीवन। We also commit every member of our church हम एक हर एक व्यक्ति को जो हमारे कलीसिया के है, and also the people who are watching. और वो हर एक लोग जो ये देख रहे हैं, We ask for your blessing upon them. हम मांगते हैं परमेश्वर आपके आशीष उनके ऊपर, Bless them with all the blessing. उनको आशीष दे आप बहुत ऐसे, Bless their families. उनके परिवार को आशीष दो, Bless their kitchen. उनके उनके किचन को आशीर्वादित Bless their करो, finances. उनके फाइनेंस को आशीर्वादित And करो, Lord, we pray और हम प्रार्थना करते for हैं your प्रभु, protection upon them. और आपका संरक्षण उनके ऊपर। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, your blood आपका लहू give them life, destroy the force of hell, and bring forgiveness and protection to their body, soul, and spirit. उनको जीवन दे और उनको बचाए रखे, उनके शरीर, आत्मा और जीव को। And Lord, we pray, और हम प्रार्थना करते हैं may they प्रभु, have fullness. और उनको पूर्णता दे, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Now, the grace of our Lord Jesus, यीशु मसीह का जो कृपा, love of our Heavenly Father, हमारे पिता का प्यार, and fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us now आप हमारे साथ आप रहे, and until Jesus और comes. यीशु मसीह आने तक रहे। Amen. आमीन। Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। We miss you हम आपको मिस करते हैं, and we believe और हमें विश्वास है very soon we'll be together. कि हम जल्दी एकत्रित होंगे। Till that time, तब तक God love you and I love you. परमेश्वर आपसे प्रीति करे और मैं आपसे प्रीति करता हूँ। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। May the peace of God rule over you. परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आए। Amen. आमीन।